We're at ground zero here in Ladakh, and the point at which I'm standing is the last point beyond which there is no media access, and in fact, no civilian access at all for anybody. And there is a reason for that. Although this is the Leh Manali highway, if you go down on the highway behind me and you turn in a certain direction, you will be moving towards the Gulwan Valley. The Gulwan Valley, of course, has been the recent battlefield for the Chinese assault on our troops. The Gulwan Valley is a few hundred kilometers away from the point at which I'm standing. In fact, according to my driver, it's about 300 kilometers away. And that is how sensitive things are, and understandably so. Access to media is very, very restricted on the ground, and we understand that there is a very, very sensitive situation that is brewing. So no complaints there at all. In other developments, of course, we do now know that 10 of our men, 10 of our soldiers were able to return home safely. This after the negotiations between military commanders on either side. Although, of course, officially, the army, the Foreign Affairs Ministry, and even the China Foreign Affairs Ministry has denied any sort of information about Indian soldiers being in Chinese custody, but that could be because as of Thursday evening, those negotiations had secured what the story of the Gulwan Valley actually is. In times of crisis and conflict, sometimes names that were not familiar to a country become household names. It happened with Tiger Hill in the Kargil war, and now it has happened with the Gulwan Valley in this violent standoff between India and China when Chinese troops have assaulted and battered 20 of ours to death. But what is the story of Gulwan Valley? You've all heard the name now. To talk about the special history of Gulwan Valley, we're joined by Mohammed Amin, and Mohammed Amin is the grandson of Rasool Gulwan, the man after whom this valley has been named. ये बताइए, मैं अभी यही जिक्र कर रही थी कि यही होता है कि क्राइसिस के टाइम में जैसे पहले किसी से पूछते गलवान वैली तो शायद कोई जानता नहीं था, आज हर घर में गलवान वैली, लेकिन ये नहीं जानते कि आपके दादाजी के आफ्टर ये वैली जो है ये नेम हुई है. तो इसकी क्या कहानी है? रसूल गलवान लद्दाख का पहला आदमी था जिन्होंने अंग्रेज़ों के जो एक्सप्लोरर टेकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उनके साथ उन्होंने गाइड किया है. वो 14 साल की उम्र में यानी 1878 में वो ले से अक्सा चीन की तरफ निकला. तो रास्ते में जो गलवान नाला अभी जो बता रहा है तो वहाँ पहुँचा. तो रास्ते में उन काफिले को लेकर रसूल गलवान और जो अंग्रेज़ों के जो एक्सप्लोरर और टेकर थे वहाँ पहुँचा. तो मौसम ख़राब होने की वजह से उनको रास्ता बिगड़ गया और उनका जो सामने जो ना मौत नज़र आ रहा था. तो रसूल गलवान पहला वो गाइड था, उन्होंने जगह को निकाल के मंजिल मकसूद तक पहुंचाया और अंग्रेज़ बहुत खुश हो गया. उन्होंने बोला इस जगह का नाम हम गलवान रसूल के नाम पर यानी गलवान नाला रखेंगे. और उनकी क्या उम्र थी तब? उस वक़्त बहुत 14 साल की थी. सो 14-year-old रसूल गलवान. आइए सर थोड़ा खड़े होते हैं क्योंकि पहाड़ हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलते, तो हम थोड़ा देख खड़े होके दिल खुश होता है. तो रसूल गलवान 14 साल के थे और उन्होंने ब्रिटिश जो ट्रैवल कर रहे थे एक्सप्लोरर्स उनकी जान बचाई. और ये कैसे हुआ कि वैली का नाम ही गलवान वैली बन गया? हाँ, वही मैं अभी बता रहा हूँ. तो जब जगह उन्होंने दिखाया तो अंग्रेज़ बहुत खुश हो गया. अंग्रेज़ ने बोला कि इस जगह का नाम जो ना वो रसूल गलवान के नाम पर यानी गलवान नाला रखेंगे. तब से अभी आप लोगों को बाखूबी मालूम है 1962 से लेके अभी तक चीन जो ना उस जगह पर क्लेम कर रहा है. वो जगह हमारा है, पहले भी हमारा था, अभी भी है. हमारा बहादुर जवान जो ना वहाँ पे लगे हुए हैं. हमें सुनने में आया कि हमारा कुछ जवान जो ना वहाँ शहीद हो गया, तो हमें उनके लिए हम सल्यूट करते हैं. अब आपकी तो परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता है गलवान वैली से. आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना इस पे डिज़ाइंस बना के रखा हुआ है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है. हम इस पे लगे हुए हैं, हमारे फ़ौज भी वहाँ पे लगे हुए हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे लद्दाखी लोग भी हर आर्मी के साथ छाना बचाना मदद करने के लिए जाने के लिए तैयार है. पाकिस्तान के लड़ाई में भी हमारा लद्दाखी लोग जो वॉलंटियर यहाँ से टाइगर हिल या बटालिक तक गए थे, उसी तरह हम भी जाने के लिए लद्दाखी लोग तैयार है.
अपनी फैमिली के बारे में और कुछ बताइए। जैसे आपकी फैमिली में जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने तो बहुत कहानियां सुनी होंगी गलवान वैली के बारे में। हाँ, मेरे वालिद साहब जो ना मेरे दादाजी के बारे में बहुत बताते थे। उन्होंने उसी दौरान जो ब्रिटिश के साथ उन्होंने ट्रैक किया था, उसी दौरान उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से डजन ऑफ वर्ड जो ना इंग्लिश सीखा। उसके बाद वो एक किताब लिखने की शक्ल में निकल गया। तो अभी सर्वन ऑफ द साहब जो लंदन से प्रिंट हुआ, जो कि ले में अभी मौजूद है, बीइंग ए लीगल हियर, मैंने इस किताब को रिप्रिंट किया, सर्वन ऑफ साहब, जो कि ले में हिंदुस्तान के हर कोने में अवेलेबल है। तो आपके दादाजी ये 14 साल की उम्र पे एक्सप्लोरर कैसे बन गए? हाँ, वही जिस वक्त ये एक्सप्लोरर और टेकर जो ना वो लंदन, जो ब्रिटिश जो ना वो ले में यही गाइड ढूंढने के लिए आया। मेरा दादाजी पहला आदमी था, बहुत छोटे उम्र में उन्होंने बोला मैं जाने के लिए तैयार है। अंग्रेज़ ने बोला भी था आप बहुत छोटे हैं, आप वहाँ पे मर जाएंगे, बड़े बड़े हिल पे चढ़ना है। तो दादाजी ने बोला मैं पहले मैं मरूंगा, तब पहले आप मारेगा, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, गलवान वैली के बारे में जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते उसके बारे में बताइए। एक नदी का नाम है। जी, वो एक नदी का नाम है, जो अभी नदी जो एक साइड में ये शायोक रिवर से होते हुए उस नली में नाले में पहुंच जाता है। तो बदकिस्मती से मैं यहाँ नहीं पहुंचा, मैं शायोक तो मैं भी पहुंचा। अगर जान सलामत रहा तो मैं अपने दादाजी का नाला ज़रूर देखूंगा। आपने नहीं देखा? अभी नहीं देखा, वही तो मैं ये कैसे हुआ? ये तो अब छोटे, मैं बीच में तो मैं छोटा था, बीच में तो फिर सर्विस वगैरह करते रहा तो मौका नहीं मिला। हालांकि मैं चंगथांग वगैरह, ये पंगोंग, ये नुब्रा वैली, हर जगह पर घुमा, और बदकिस्मत अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सका, वही अफसोस है। अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाके अपने दादाजी के नाले को ज़रूर देखूँगा। आपने ये भी बात रखी कि हमेशा ये जो वैली है ये हमेशा भारत की ही रही है। बिल्कुल भारत का रहा है, भारत का था, भारत का है, भारत का रहेंगे। और आपने ये भी बोला है कि चाइनीज़ को वहाँ से हटना चाहिए, लेकिन जंग एक आंसर नहीं है। बिल्कुल, जंग से जो ना वो मसला हल नहीं होता है। ये दोनों जो मुल्क जो ना आपसी बात करके इसको सुलझाना चाहिए। जंग कोई मसला पर अगर वहाँ से चाइना ना हटे तो वो तो उस वक्त तो हिंदुस्तान भी पीछे कदम नहीं लेना चाहिए। तो मोहम्मद अमीन साहब, आप देश के लोगों को क्या बनाना चाहेंगे? अगर गलवान वैली के बारे में आपको एक वाक्य में, एक पंक्ति में कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? लोगों को ये बोलेंगे, देखो हमारा देश है, देश का ज़मीन जो ना 1 इंच भी नहीं देना चाहिए। अगर चीन मानता है तो तरीके से मान के पीछे हट के सुलझाना चाहिए। जंग जो ना मसला नहीं है, जंग से बहुत तबाही है, लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर नहीं मानता है तो हम जो ना पीछे हटना नहीं चाहिए। So this is the story of Gulwan Valley, and here behind me is you can see Muhammad Amin, the grandson, and of course the story of these mountains. Probably each peak has a story of its own, but it takes sometimes a crisis like the one that we're in the middle of right now to ferret these stories out. And perhaps if this crisis had never happened, we would never have known what the story is behind Gulwan Valley. Well, now we do know.